Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and my co-anchor is Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Manoj, and Vishal. Welcome to the program once again. A quick look at the headlines. Benchmark domestic equity indices continue their downward trend. Sensex shed 600 points. Nifty settles below 25,700. New Delhi is closely monitoring US bill proposing higher tariffs on countries buying Russian oil, says Ministry of External Affairs. And global crude oil prices rise. घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी। सेंसेक्स 600 अंक से अधिक लुढ़का। निफ्टी 25,700 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। विदेश मंत्री ने कहा, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका में प्रस्तावित ऊंचे टैरिफ बिल पर भारत नजदीकी से नजर रखे हुए है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े। As we move into the program, listeners, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें घरेलू शेयर बाजार से, जहां लगातार बिकवाली का सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.7% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। गौरतलब है कि पिछले लगातार 5 सत्रों से बाजार में बिकवाली चल रही है। सेंसेक्स 2000 अंक से अधिक नीचे आ चुका है। कारोबार की शुरुआत आज कमजोर हुई और मंदरिये लगातार बाजार पर हावी रहे। अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 605 अंक घटकर 83,576 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 194 अंक कम होकर 25,683 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कहीं अधिक तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.9% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% से अधिक लुढ़क गया। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and Nifty, ended over 0.7% down today, extending their losing streak to a fifth straight session. Both indices opened with mild losses and continued to trade on a bearish note throughout the trading session. The Sensex shed 605 points to close at 83,576, while the Nifty dropped 194 points to settle at 25,683. Weakness was also seen in the broader market at the Bombay Stock Exchange. The mid-cap index fell 0.9% and the small-cap index slipped over 1.7%. नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक पर। सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियां आज नुकसान के साथ बंद हुई। नुकसान उठाने वालों में सबसे ऊपर रही कंपनी एनटीपीसी, जिसके शेयर 2.3% से अधिक नीचे आ गए। आईसीआईसीआई बैंक को 2.2% से अधिक की हानि हुई। अदानी पोर्ट के शेयर लगभग 2% लुढ़क गए। घाटे के बीच लाभ कमाने वालों में एशियन पेंट्स को 1.4% का मुनाफा हुआ। एचसीएल टेक के शेयर 0.9% ऊपर उठकर बंद हुए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर लगभग 0.8% फायदे में रहे। Among sectoral indices at the BSE, 17 out of 22 sectors closed in negative territory. Among the key decliners, realty dropped over 2.2%, services as well as utilities shed more than 1.8%, and power lost 1.8%. Among sectors that managed to hold gains, oil and gas added over 0.5%,
Focused IT rose 0.2% and PSU banks gained nearly 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,105 declined, 1,065 companies advanced and 176 remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 14 पैसे कमजोर हुआ, 90 रुपए 16 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.03 पर चल रहा था। विशाल जी, बाजार में लगातार इस सप्ताह हमने बिकवाली देखी है, इसे क्या माना जाए? एक सुधार का दौर यानी करेक्शन जिसे हम कहते हैं टेक्निकल, उसे या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर अनिश्चितता के दौर में पूंजी निकालना एफआईआईज का? देखिए, इसे सुधार से ज्यादा मनोज जी जो अनिश्चितता का दौर बना हुआ है वैश्विक पटल पर, चाहे हम आर्थिक नज़रिए से देखें या फिर जियोपॉलिटिकल नज़रिए से देखें, ये उसका असर ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि आप देखिए ये दबाव अब लगभग चौतरफा है। यानी कि एक तरफ अगर ट्रंप टैरिफ्स की बात करें उनकी तरफ नज़र डालें, दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं अलग अलग इलाकों में दुनिया के, अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर हमला किया वो, रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, उधर ईरान में भी आंतरिक प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये जो सब वाक़े हैं इनका असर बाज़ारों पर देखने को मिलता है, अर्थव्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वेनेजुएला एपिसोड की अगर बात करें तो उसका सीधा असर जो क्रूड प्राइसेस हैं यानी कि जो तेल की कीमतें हैं उन पर देखने को मिला है। तेल की कीमतें बढ़ी हैं और तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने का सीधा नेगेटिव असर अब भारत पर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो तेल के इंपोर्ट का बिल है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। हम ज़्यादातर अपनी जो तेल की खपत करते हैं वो इंपोर्ट से करते हैं, और अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारा जो खर्चा है, जो हमारा बिल है तेल की कीमतों को से संबंधित, वो भी बढ़ेगा। तो ये सब जो सारे फैक्टर्स हैं उनको जब जोड़ के देखा जाए तो एक अनिश्चितता का माहौल लगता है, और ऐसे अनिश्चितता के माहौल में बाज़ारों का लाल दायरे में पहुंचना यानी कि रेड में जाना और नेगेटिव सेंटिमेंट होना ये लाजमी है। और ऐसे समय पे एफआईआई भी बिकवाली पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सबसे पहला मौका एफआईआईज़ का एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उसके बाद वो लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि आज ही के दिन लगभग 3300 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईआईज़ ने की, और पिछले लगभग 4 से 5 दिन ये देखने को मिलता रहा है। केवल शायद साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी को इसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली थी। लेकिन एफआईआईज़ के मामले में हमें ये भी देखना होगा कि वो जितनी तेज़ी से बाहर जाते हैं उतनी ही तेज़ी से वापस भी आते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे ही लगेगा कि यहाँ माहौल थोड़ा सा खुशनुमा है भारत के शेयर बाज़ारों में, वो अपनी वापसी ज़रूर करेंगे। और उस वापसी के लिए इससे पहले कि अगला सवाल गौरा जी मुझसे पूछें उस मसले पर, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि उस वापसी के लिए इंतज़ार हमें करना होगा थर्ड क्वार्टर के नतीजों का, इंतज़ार हमें करना होगा जीडीपी के आंकड़ों का, भारतीय जीडीपी के आंकड़ों का, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आते हैं, ना केवल देसी इन्वेस्टरों के बीच, बल्कि एफआईआईज़ जो हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक बार फिर से ये भरोसा हो जाता है कि नहीं, यहाँ सब ठीक है, यहाँ से निकलना गलती थी, तो वो तुरंत उल्टे पैर वापस भी आते हैं। So I think that's a valid point, Vishal. If you're in the market and you're a steady market player, then intezar is a part of the discipline that you do it. So yes, intezar karenge. You know, just doing a zoom out now here and saying that let's put the global volatility and the global factors aside. If you see the market, people had been predicting end of December, Christmas time, it's going to fall. We were steady. We were okay. Market was going up. So if you see it as a pattern, just the graphical representation and how the market, it's also like a correction, which is good, healthy? Well, every time, the markets see sort of a negative impact or I won't use the word tumble, but I would say, come down a little bit, which is happening right now. And if it's a streak for 4 to 5 days, that should not
worry people too much. But yes, it's a cautionary measure. It's a cautionary move right now. Now we'll have to understand that whenever situations like these occur, built within the ecosystem is also some sort of the correctionary measures which you are referring to on certain sectors, on certain scripts, on certain companies, because over evaluation is one concern which has always been raised by the FIIs and the market experts from time and again, saying that we see, and in the past 9 to 10 months or almost a year or so, we've seen those correction streaks as well, maybe for a session or 2 sessions and all that. But since this streak, this around 5-day long streak, I'm attributing to the international factors, largely to the international factors. But yes, indeed, it will have a bit of a correctional measure as well on the domestic front. Again, let's not jump the gun here, because if you look at the candles and if you look at the zoom out and look at the overall data, if the market stays within 25,000, Nifty stays between 25,000, below 25,000, we might see it going into the red slowly as well. But there is a resistance level, and markets have always performed well on the resistance levels. If we look at the key factor here defining why it has happened, and as you're pointing out, people saying it might happen around Christmas. Why didn't that happen around Christmas? I believe the key factor was, of course, the U.S. action against Venezuela, and that is now manifesting itself, because that is also manifesting in terms of sharp rise in crude oil prices, and any rise in crude oil prices is not good for economies like India, which are dependent on import of crude oil for a major part of their consumption, and that is now coupled with the U.S. Talks about a more heightened trade tariffs in case of those countries who are importing from Russia. So there are all factors involved, and this makes situation a little bit more complicated, and that is why we're seeing one after the other things have happened in the past week or 10 days, and that has had a sort of a domino effect on the market sentiment, and for this to come to a stop, we will have to look inwards. And as I've always said, that India's economic fundamentals have always been strong. Every time we look inwards, every time we're cushioned by DIIs, every time there is a domestic data which comes in, which counters the international sentiment, which counters the US data, be it labor, be it inflation, be it the job market. And that is something which again, sort of places us in a very unique corner. We can't be immune to what's happening in the global economic world. Yes, it will impact us to a certain extent, but we have our fundamentals which are very strong, and we have we have that courage, the economic courage to bounce back from these streaks, which will I would say, which will not stop here, which will keep on coming, because that's the nature of the market. It'll go up, it'll come down. यहाँ पर विशाल जी आपने कई सारी बातें कही. यहाँ हम यानी अपने निवेश को, जो छोटे निवेशक हमारे श्रोता हैं, उनके नज़रिए से समझना चाहेंगे कि इस तरह की जब बाजार में गिरावट हो तो उनका व्यवहार क्या होना चाहिए. एसआईपी आमतौर पर हमारे नियमित श्रोता किया करते हैं, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा कुछ पैसा, यानी स्मार्ट निर्णय, यानी जो निवेशक हम जिसको कहते हैं स्मार्ट निवेशक, उस नज़रिए से कुछ अच्छे यानी मौक़ों पर अवसर निकाल के निकल जाना चाहिए, या बाजार में कुछ और पैसा यानी लगा देना चाहिए? क्या सलाह देना चाहिए? ये दो अलग अलग पहलू हैं बाजार में. अगर आप देखें तो एक है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना और एक है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना. तो क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो प्रक्रिया है और उसका जो नेचर है, उसका नेचर बड़ा साफ है. आप आज बाजार में अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये की है, तो आपकी एसआईपी अगर आज लग रही है तो आप उसे 100 रुपये पे खरीद रहे होंगे. अगले महीने अगर बाजार गिर गया है और उसकी कीमत 70 रुपये हो जाती है, तो आप उसको कम प्राइस पे खरीद रहे होंगे. तो म्यूचुअल फंड के लिहाज से अगर देखा जाए और आप अगर एसआईपी के इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि बाजार का नीचे आना आपके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि आपका अगर क्यूमुलेटिव स्टॉक में कुछ थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, तो आप जब अगली खरीद जो कर रहे हैं
वो कम पैसे पे ही कर रहे हैं। रही बात शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की, तो मैंने हमेशा कहा है कि शेयर बाजार में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको केवल वो लाल और हरे नंबर्स देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। उस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है, उस कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है, उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है, वो कंपनी जिस सेक्टर में है उस कंपनी में उस सेक्टर में उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके आंकड़े क्या कहते हैं, तो इस सब का एक आकलन करके ही आप शेयर बाजार में उतरें। यानी कि आप, मेरा मानना है कि तभी आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं। अदरवाइज आज मैंने आपको कहीं इन्वेस्ट करते हुए देखा और लगा कि आपने उसमें 10 रुपए कमा लिए और मैं भी उसमें इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन आपने तो कल कर दिया था, मैं आज करूंगा, तो हो सकता है कि मैं 10 रुपए ना कमा पाऊं। यानी होशियारी देखते हुए सोच समझ कर निवेश करना है, यही हमारी सलाह विशाल जी की। आइए आगे बढ़ें, चलें एशियाई बाजारों की ओर। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज तेजी दिखी है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.6% मुनाफे के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.9% से अधिक की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हिंगसेंग भी 0.3% ऊपर आकर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। यूरोप के प्रमुख बाजारों पर नजर डालें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 लगभग 0.5% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.6% से अधिक की वृद्धि बनी हुई थी। फ्रांस का कैक 40 भी 0.8% से अधिक लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। A look at the U.S. markets. Major U.S. indices ended mixed yesterday. Shares of technology-related stocks fell, while shares of defense companies gained amid U.S. President Donald Trump's plans for a $1.5 trillion military budget for 2027. The Dow Jones Industrial Average rose over 0.5%, and the S&P 500 closed flat with positive bias. Conversely, the Nasdaq Composite Index dipped more than 0.4%. So, Vishal, it's interesting. You go back, maybe over the last 60 days data or 30 days data, and you will see that the Indian market and a lot of global decisions are actually, the butterfly effect of a lot of decisions taken by the U.S. governance and head of the U.S. government. But also to say that their market reacts differently, responds differently, and our market reacts differently. Do you think we are more sensitive, more, cagey, or is our market yet to mature? No, not at all. I don't subscribe to that view because there are, different factors which govern the sentiments of different markets across the world. For example, today, the Indian stock markets came down in a long streak for the 5th consecutive day. But as you were mentioning, when you look at the Asian and European markets, I was going through it. Almost all of them are, in green. Not much, but someone 0.7, 0.8, 0.9, 1.2 as well. Now, what impacts a particular stock market in a particular economy is governed by the interest of that particular country and that particular country's economy as well. Now, today, if you're looking at the U.S. markets, the reason why there is a upward movement in the U.S. stock market is because President Trump there has pointed out very clearly that he's going to invest very heavily. He's going to allocate budget very heavily in the defense sector. Now that's a fillip for various defense manufacturing companies, various allied companies as well, and those are the ones which are driving the upward movement out there. Similarly, when we saw just a few months ago when there was a sharp decline in the U.S. stock market, that was because of the tech stocks. They were not doing well. The AI industry was going through a lot of pangs, but it didn't bother us because our markets were not too overexposed to those particular sectors. So there will be domestic sentiments, there will be domestic factors. Not always it will be international ones. And as far as the U.S. markets are concerned, they're largely driven by the domestic factors and the domestic sentiments as well. What their government says,
what the government data says, what's exactly happening as far as the United States involvement in the global geopolitics is. That is what bothers them. What might happen in China might impact them a little bit, but it is not necessary that it will have a larger impact. यहाँ पर आपने चीन की बात की, समझना चाहेंगे चीन से जो आंकड़े आ रहे हैं उनकी महंगाई से संबंधित या उनकी विकास से संबंधित, वो क्या कहानी कह रहे हैं और चीन किस दिशा में जाता लग रहा इस वर्ष, ये तथ्य ध्यान में रखते हुए कि आपने यानी हमने आज खबर दी कि ट्रंप लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर रक्षा पर निवेश करेंगे, दुनिया के कई देश उस दिशा में जा रहे हैं, तो वहां चीन की स्टोरी क्या कह रही? देखिए, चीन की स्टोरी के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि चीन के मामले में जब हम बात करते हैं तो जिन पब्लिक आंकड़ों की हम बात करते हैं वो पब्लिक आंकड़े कितने सच हैं और कितने सच नहीं है, इसका संशय हमेशा बने रहता है। लेकिन फिर भी अगर उन आंकड़ों के लिहाज से ही देखा जाए और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन चाइना की तरफ से शेयर हो रही है या फिर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जो है उसके मुताबिक अगर चीन का रुख देखें तो दो तरफा रुख है। पहला ये कि डिफेंस सेक्टर में, यानी कि जैसे अमेरिका ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है डिफेंस बजट पर इस बार, ऐसा मूवमेंट चाइना ने लगभग 1 या 2 साल पहले ही शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी डिफेंस सेक्टर में अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग उनकी है उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू किया, और दूसरा उनका जो फोकस है वो है टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में। चीन की जो मुझे लगता है कि चीन की जो सबसे बड़ी इस वक्त गोल जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके इस्तेमाल के क्षेत्र में चीन दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है, और नंबर 2 यानी कि अमेरिका जो इस वक्त है, दोनों में जो कंपटीशन है, नंबर 2 जो अमेरिका रहेगा उसको इतनी पीछे छोड़ देना चाहता है कि शायद आने वाले 10, 15, 20 साल में वो रेस में आगे ही बरकरार रहे। अब ये कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन चीन का फोकस डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है इन 2 क्षेत्र में इस वक्त सबसे ज्यादा है। Moving on to our next story, the External Affairs Ministry today stressed that India and the US remain interested in a mutually beneficial trade deal. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal informed that both countries have been close to a deal on several occasions. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year. Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. On the bill in the US Congress proposing high tariffs on countries buying Russian oil, the spokesperson said that New Delhi is closely following developments. He stated that India's position on the larger question of energy sourcing is well known. Referring to recent comments by US Secretary of Commerce, the spokesperson said the characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. He underlined that Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump have also spoken on the phone on 8 occasions last year, covering different aspects of a wide-ranging partnership. आइए आगे बढ़ें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ EU के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि यह चर्चा भारत और यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के तहत आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान प्रस्तावित समझौते के प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने नियम आधारित व्यापार ढांचे और आधुनिक आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो भारतीय उद्योगों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करते हुए किसानों और लघु तथा मध्यम उद्यमों के हितों की रक्षा करती है। Our next two stories have some data coming in. The first, mutual fund data. The monthly mutual fund systematic investment plan, SIP, inflows reached a new record high at 31,002 crore rupees in December last year, as compared to 29,445 crore rupees in November. According to data from the Association of Mutual Funds in India, gold ETFs also registered strong inflows of 11,646 crore rupees last month, higher than 3,742 crore rupees in November. Under hybrid schemes, multi-asset allocation funds attracted inflows of around 7,426 crore rupees. However,
the mutual fund industry reported an overall net outflow of 66,591 crore rupees in December. More data coming in. India's foreign exchange reserves edged down by $9.8 billion to $686.8 billion for the week ending on the 2nd of January 2026. Foreign currency assets, which form the largest component of the reserves, dipped by over $7.6 billion to over $551 billion during the week. The change in foreign currency assets is influenced by fluctuations in currencies such as the euro, pound and yen. Gold reserves fell by over $2 billion to $111.2 billion. आगे बढ़ते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने कल जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्घाटन गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि वस्त्र उद्योग में समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए जिलों में वर्गीकरण किया गया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। इस रणनीतिक पहल के अंतर्गत जिलों को विजेता और आकांक्षी जिलों में बांटा गया है। इससे निर्यात में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विजेता जिले काम में किसी भी तरह की देरी का निपटान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस पहल का लक्ष्य मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स का अपग्रेडेशन, इंडस्ट्री 4.0 का एकीकरण और प्रत्यक्ष निर्यात बाजार संपर्क को सुगम बनाना है। मंत्रालय का उद्देश्य उच्च क्षमता वाले 100 जिलों को वैश्विक निर्यात विजेता में बदलना और 100 आकांक्षी जिलों को आत्मनिर्भर केंद्रों में विकसित करना है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि इन क्षेत्रों को जनजातीय विकास, संपर्क सुधार और जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन टैगिंग के लिए प्राथमिकता दी गई है, ताकि विशिष्ट सांस्कृतिक हस्तशिल्प को वैश्विक बाजारों में पहचान दिलाई जा सके। अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। यहाँ पर विशाल जी समझना चाहेंगे कि वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने में ये पहल किस रूप में काम आने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो ट्रम्प टैरिफ का जो एरा चल रहा है उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और टेक्सटाइल का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने अपनी पहचान भी बनाई है। ऐसे में अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पहल जो ये चलाई जा रही है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से, इस तरह के प्लानिंग के हिसाब से आगे चलेंगे तो उसके नतीजे सामने आने लाजमी हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों की अपनी अलग अलग पहचान है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें। और ऐसे ही टेक्सटाइल क्षेत्र में भी भारत के अलग अलग जिले हैं जहां पर अलग तरह का परिधान बनाया जाता है या अलग तरह से कपड़े का डिज़ाइन बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में जो मैं देख पा रहा हूं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनिशिएटिव थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो पहचान दिलाता है न केवल देश के अंदर बल्कि वैश्विक पटल पर भी। और इस वक्त जब खासतौर पे बात जब इंटरनेशनल इकोनॉमीज में हो रही है तो वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल की बात। Global crude oil prices gained today on concerns about potential disruption to Iran's output and uncertainty about supply from Venezuela. Brent crude was trading over 0.8% up at $62 and 52 cents per barrel, and WTI crude was trading over 0.8% higher at $58 and 25 cents per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading around 0.5% up at 1,38,840 rupees per 10 grams. Silver was also trading nearly 2.3% up at 2,48,460 rupees per kilogram a short while ago. सोने और चांदी की चमक MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी समाचार तैयार किए जाने तक तेज चल रही थी। फरवरी अनुबंध वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.5% बढ़त के साथ 1,38,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 2.6% की बढ़त के साथ 2,49,598 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से विशाल जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जी धन्यवाद। Absolutely, thank you, Vishal. And before we close, a look at the headlines once again. Benchmark domestic equity indices continue downward trend. Sensex shed 600 points. Nifty settles below 25,700. New Delhi is closely monitoring US bill proposing higher tariffs on countries buying Russian oil, says Ministry of External Affairs. And global crude oil prices rise. And that's it for today's program. Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra.